तुम्हें 50 रुपए के इजाफे पर बरहमी का इजहार किया है। सीपीआई के कौमी लीडर नारायणा और रियासती लीडर वंजा ने कहा कि मोदी हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद से कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि 2014 के इलेक्शन में बीजेपी ने महंगाई पर काबू पाने का वादा किया था, लेकिन बीजेपी इक़्तिदार में महंगाई पर काबू नहीं पाया गया, बल्कि महंगाई में मजीद इजाफा हुआ है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी हुकूमत मालदारों की मदद कर रही है, गरीबों को मुश्किलात से दो चार कर रही है। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी मंडी में कीमतें कम है, लेकिन भारत में बढ़ रही है। उन्होंने गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देने का मुतालबा किया। बढ़ाई गई कीमतों में कमी करने की भी उन्होंने मांग की। Namaskar for this gas and then go for vote. That means that gas rate is increased by the central government, then government Congress. Now what happened at that time? This is 500 or 600 below that gas rate. Now it went up to 1055. Latest of 50 rupees increase. So what do you say? How you say that, and why you are increasing this? This internationally it is coming down, and petrol, gas and all. If you go for Venezuela, you can get cheaper rate. If you get Iran, you can get cheaper rate. So it is criminally behaving Modi government against the common people. We are seriously condemning it. Government has to rethink about this price raise of the gas and also oil. Also, all essential commodities are increasing day by day. So it is not able to afford the masses and not able to afford the poor people. So the central government has to rethink, revise this gas rate and also give the subsidies also. पकवान गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए का इजाफा करने पर तेलुगु देशम पार्टी के खातून लीडरों ने एहतजाज किया। खाली सिलेंडरों के साथ पार्टी दफ्तर पर एहतजाज किया। मरकजी और रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी और जगन हुकूमत ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। दिन ब दिन महंगाई में इजाफे से आम आदमी परेशान है। उन्होंने बढ़ाई गई कीमत को कम करने और गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देने की मांग की है। రాష్ట్రంలో కూడా కనీవిని ఎరుగటువంటి రీతిలో నిత్యావసర సరుకులు, గ్యాస్ బండ, కరెంటు బిల్లులు, పెట్రోల్, డీజిల్ అన్నీ కూడా ధరల ఆకాశాన్ని అంటున్నాయి. మేము తెలుగుదేశం పార్టీ తరపున, తెలుగు మహిళా కమిటీ తరపున ఒకటే డిమాండ్ చేస్తాం జగన్మోహన్ రెడ్డి. ఈ రోజు ఈ నిరసన యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం తక్షణమే గ్యాస్ బండ రేటు తగ్గించాలి. आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1 के फाइनल नताइज का ऐलान कर दिया। 2018 में 167 खाली असामियों पर भर्तियों के लिए एलामिया जारी किया गया है, जिसमें 30 डिप्टी कलेक्टर, 28 डीएसपी और दीगर ओहदे शामिल हैं। ग्रुप 1 में 96 मर्द और 67 खवातीन की कामयाब करार दिया गया है। जिला ईस्ट गोदावरी की रानी समिता टॉपर रही हैं। हैदराबाद की वी संजना तीसरा रैंक हासिल करने में कामयाब हुई है। एपीपीएससी के सदर नशीन गौतम स्वांक जल्द मजीद एलामिया जारी करने का ऐलान किया। 14,473 candidates had applied. 58,059 candidates appeared for the screening test, which was conducted on 26th May 2019, out of which 8,351 candidates were selected for the mains, and subsequently, in compliance with Supreme Court orders, another 1,328 candidates were picked up, and totally 9,679 candidates were shortlisted for the mains exams. As you are aware, the main exams were postponed on 3 occasions. Candidates were selected for the interviews to fill the 165 vacancies. Abhina Rojlo, our notifications is already ichinadi. 16 notification, 3 already అయిపోయింది. ఇంకా 13 notification కూడా in the within this month, next month onwards, you will see that series of notification coming out. सीपीआई रियासती सेक्रेटरी रामाकृष्णा ने इल्ज़ाम लगाया कि नई तालीमी पॉलिसी से रियासत में तालीमी निज़ाम
बिगड़ गया है। उन्होंने रियासत की यूनिवर्सिटियों में खाली लेक्चर्स की पोस्ट को जल्द भर्ती करने की मांग की। They are not implementing the guidelines of the UGC rule, fulfilling the for teacher, lecturer post to professor post in the universities. So, in all over Andhra Pradesh, nearly 5,000 lecturer posts or vacancies are there in the universities. The prestigious universities are also facing lot of problems nowadays. Curriculum atmosphere is ruined in the university campuses. The second thing is, already the intermediate education is handed over to corporate sector and also private sector. Only primary education is there. Even at the time of primary education level, they are implementing so many changes in that. They don't want to implement they don't want to fill up the teacher posts in the primary schools also. So that our students are also facing lot of problems. जिला करनूल में भारी बारिश हुई। बारिश से सड़कें ज़ेरे आब आ गई। सड़कों पर पानी जमा होने से मोटरसाइकिल सवारों को मुश्किलात का सामना रहा। करनूल समेत कई इलाकों में बारिश से अवाम खुश हुए। दूसरी तरफ बल्दिया की कलई खुल गई। ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होने से अवाम को मुश्किलात पेश आई। वहीं सड़कों की खराब हालत पर तेलुगु देशम ने तशवीश का इजहार किया। टीडीपी के जिला सदर सोमी शेट्टी ने बताया कि हल्की से बारिश से सड़कें झील का नज़ारा पेश कर रही हैं। सड़कों पर पानी जमा हो रहा है जिससे अवाम को आमद-ओ-रफ्त में परेशानी हो रही है। उन्होंने सड़कों को दुरुस्त करने की जगन हुकूमत से गुजारिश की। वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे आंध्र प्रदेश से रियासत के अवाम में मायूसी देखी जा रही है। करनूल में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से रियासत को ख़ुसूसी दर्जा देने की मांग करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पर एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने आंध्र प्रदेश के अवाम से किए गए वादों को पूरा करने की मांग की। रियासत को ख़ुसूसी दर्जा, स्टील फैक्ट्री, पोलावरम के वादों को जल्द पूरा करने का मुतालबा किया गया। स्पेशल स्टेटस साधना समिति ने वजीर आजम के दौरे एपी को नाकाम करार दिया। समिति के मकामी लीडर ने वजीर आजम से अपने वादों को पूरा करने का मुतालबा किया। उस दिन उन्होंने एक मुट्ठी मट्ठी और ऐसा कि एक गिलास पानी लाकर हमारे मुंह पर डाल गए। फिर दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आंध्र प्रदेश को अलूरू सीताराम राजू का स्टैचू ओपन करने है, तो दूसरी बार भी आंध्र प्रदेश की पब्लिक को बीजेपी गवर्नमेंट धोखा दी है। स्पेशल स्टेटस दे तुम बोल को बोले सो स्टेटस के बारे में ऐसा लफ्ज भी नहीं उठाए। और राजधानी डेवलपमेंट का कैपिटल सिटी अमरावती को डेवलपमेंट को से कुछ भी नहीं। आंध्र प्रदेश को ये आने से फायदा ना होता हुआ, लॉस हुआ। तुम दिए हैं, वादा करे हैं, वो वादा निभाना बोल को हमें डिमांड करें। मौलाना सईद शाह मुबशिर पाशा कादरी ने मुसलमानों को ज़िलहज के पहले 10 दिन और रातों में ख़ुसूसी इबादतों का एहतमाम करने की अपील की। उन्होंने साहिब सरवत मुसलमानों को कुर्बानी देने और इसमें मरबा और रिश्तेदारों को ख्याल रखने की तलकीन की। हुकूमत को दी गई गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करने का भी मशवरा दिया। इबादतों में इखलास पैदा करने पर जोर दिया। बहुत ही बाबरकत महीना है। इस महीने में हज बैतुल्लाह शरीफ भी किया जाता है, इसीलिए इस मुनासिबत से इसे जुल्हिज्जा का महीना कहा जाता है। आप हजरात जानते हैं इसमें जो अपने अपने वतन में रहते हैं उन पर कुर्बानियाँ वाजिब हैं, लिहाजा जो साहिब इस्तिताअत हैं उन पर कुर्बानी लाजमी है। लाजिम कर लें अपने ऊपर कि कुर्बानी दें और इस बात का लिहाज रखें कि कुर्बानी के साथ में अपने रिश्तेदार, गरीब रिश्तेदारों का बिलखुसूस अच्छी तरीके से ख्याल रखें और जहाँ तक हो सके मुसलमान भाई बहन वगैरह रिश्तेदार के अलावा गरीबों का भी इसमें हिस्सा है, उनका भी ख्याल रखें। जो हुकूमत के गाइडलाइंस हैं उसका भरपूर लिहाज रखें। ऐसा ना हो कि आप वीडियो लें, जानवरों की ज़िबा का वीडियो निकाल कर शोर शराबे करें जिसकी वजह से अंगुश दुमाई का हम मुसलमान शिकार हों। इससे महफूज रहते हुए ईद गुजारें और इस ईद को हमारे लिए मुबारक साबित करें। 1 तारीख से लेकर 10 ज़िलहिज्जा तक अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक बहुत ही अहमियत वाली इन रातों की अहमियत है, लिहाजा आप इन रातों में खूब अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने की कोशिश करें। जिला नंदियाल के हल्के आत्मकौर में तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से दुल्हन स्कीम की अमलावरी का मुतालबा करते हुए एक रोज़ा जंजीरी भूख हड़ताल मुनक्किद की गई। तेलुगु देशम लीडर मोमिन मुस्तफ़ा ने YCP हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, मुसलमानों को धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया।
టోపీ పెట్టుకొని ముస్లిం సామాజిక వర్గంలో ప్రతి ముస్లింను తలకాయ మీద టోపీ పెట్టేసినాడు. అంత నిక్కచ్చిగా ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మోసం చేసినారు. ముస్లిం మైనారిటీ సామాజిక వర్గం ఇతర సామాజిక వర్గాలతో కూడా కంపేర్ చేసుకుంటే మేము కూడా పన్నులు కడుతున్నామే, మేము కూడా ఈ యొక్క రాష్ట్రంలో మేము కూడా భాగస్వాములమే, మమ్మల్ని ఎందుకు మీరు ఇంత వివక్షతో ఈ విధంగా మా మీద కక్ష సాధింపుగా మీరు చర్యలు తీసుకుంటారు? करनूल शहर के वार्ड नंबर 6 के गवर्नमेंट प्राइमरी उर्दू स्कूल में जगन अन्ना तालीमी किट्स तलबा में तकसीम किए गए। रुकन बल्दिया शेख नीलोफर ने तलबा को दिलचस्पी से तालीम हासिल करने की तलकीन की। इस प्रोग्राम में स्कूल टीचर्स प्रवीण और दीगर मौजूद थे। वहीं कोंडापल्ली म्यूनसिपलिटी पर तेलुगु देशम पार्टी और TNTUC ने म्यूनसिपल मुलाजमीन के मसाइल को हल करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। एहतजाजियों ने म्यूनसिपल ऑफिस तक रैली निकाली। पुलिस ने म्यूनसिपल ऑफिस के गेट को बंद कर दिया। एहतजाजियों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। हेल्थ अलाउंस के बकाया जात फौरी अदा करने का मुतालबा किया गया। अम्मावाड़ी स्कीम से सफाई के कारकुनों पर 6,000 रुपये माहाना तनख्वाह और हेल्थ अलाउंस देने की मांग की गई। PF और ESI के मसाइल हल करने पर भी जोर दिया गया। तमाम म्यूनसिपल वर्कर्स को रिहायशी जगह अलॉट करने की मांग की। और विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश विलेज रेवेन्यू ऑफिसर एसोसिएशन के दफ्तर में मीटिंग मुनक्किद हुई। आंध्र प्रदेश विलेज रेवेन्यू ऑफिसर्स एसोसिएशन, डायरेक्टरेट रिक्रूटमेंट विलेज रेवेन्यू ऑफिसर्स एसोसिएशन, ग्रेड 2 रेवेन्यू विलेज ऑफिसर्स एसोसिएशन अपने मसाइल पर तबादले ख्याल के लिए एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हुए। अमरावती JAC के चेयरमैन V वेंकटेश्वरलू ने प्रोग्राम में शिरकत की। B वेंकटेश्वरलू ने हुकूमत से VRO के तौर पर काम करने वालों, ग्रेड 2 से आने वाले अफराद के मसाइल को हल करने की मांग की। साबिक रुकन असेंबली करनूल SV मोहन रेड्डी ने पार्टी कारकुनों से खिताब किया। उन्होंने दावा किया कि YCP हुकूमत अगले 30 साल तक बरकरार रहेगी। जगन हुकूमत से समाज का हर तबका खुश है। उन्होंने कहा कि अवाम जगनमोहन रेड्डी हुकूमत की स्कीमों से बहुत मुतासिर है।